Hello, good morning all. Welcome to this e-lecture on the topic thermodynamic and kinetic aspect of metal complexes. So in the past lecture we went through the factors affecting the rate and mechanism of substitution reaction. So in this we learned about the factors which are related to metal, pertaining to metal, and factors pertaining to ligand. So today we are discussing the substitution reaction in square planar complexes. So as you know that majority of the work with square planar complexes has been concerned with those formed by platinum 2. Although complexes of gold, rhodium, iridium also they have received attention, and the reaction of square planar complexes of nickel and palladium 2, nickel 2 and palladium 2 complexes, they appear to resemble those of platinum 2, but they are comparatively highly reactive, so they are less readily studied. So it should be noted here that all of these metal ions, they have D8 configuration. So according to valence bond theory, all these electrons, they fill the 4d orbitals, leaving 1d orbital vacant. So this orbital is the dx square y square orbital if xy plane is the plane of the molecule and is involved in dsp2 hybridization, giving you square planar complex, square planar geometry to the coordinated compound. So two pathways for the substitution reaction in square planar complexes are possible, as we learned in the past lecture. First is the dissociative mechanism, and the second is associative mechanism. So we discuss dissociative mechanism. ठीक है ना? तो this mechanism requires the formation of an activated complex of reduced coordination number, or in other words we can say that the complex should have a tendency to dissociate. So it is concluded from the kinetic studies of a number of common platinum 2 complexes that dissociation is not a favorable process. For example, if we consider the substitution reactions of tetrachloroplatinate 2 ion and the amine complexes derived from it, as you can see from the screen. So all these complexes they can be represented by the general formula here shown here, that you can that is seen on the screen. यहाँ पे जो n की जो वैल्यू है it can be 4, 3, 2 and 1. So the charge on these platinum amine complexes they continuously increase by 1 unit. यानी कि charge on जो tetrachloroplatinate 2 ion है it is minimum, and that on chloropentamine triamine platinum plus is maximum. So it implies from the simple electrostatic theory that ligands here ligands in the tetrachloro complex should be mostly loosely bound. In other words, we can say that this complex should have maximum tendency to dissociate. Further, this tendency is expected to decrease continuously as the number of chloro group in the complex decreases, and when they are being replaced by amine group. However, the reaction rate for the first three complexes is approximately the same, whereas in the chlorotriamine platinum 1 it reacts about 2.5 times faster. So this clearly indicates that the dissociative mechanism is not favored here. However, steric crowding at the center usually inhibits associative reaction and facilitates the dissociative pathway. So bulky group can block the approach of attacking nucleophiles, and the reduction of coordination number in a dissociative reaction can relieve overcrowding. So what we find is that कि डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म के लिए जो है क्या कंडीशन होनी चाहिए कि स्क्वायर प्लेनर के डिसोसिएशन के परिणाम स्वरूप जो है सबसे पहले एक लोअर कोऑर्डिनेशन रिड्यूस कोऑर्डिनेशन नंबर के इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो.
ठीक है ना। लेकिन जब प्लेटिनम 2 कॉम्प्लेक्सेस का जब अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म जो है एक फेवरेबल पाथ नहीं है, जैसा कि हमने आपको हियर वी हैव शोन थ्रू दीज रिएक्शन ऑन द स्क्रीन कि हमने जब इन सारे रिएक्शंस को व्हेन वी स्टडीड एनालाइज्ड तो जो भी रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें जैसे जैसे क्लोराइड लिगेंड की संख्या घटती जाती है तो उस दिशा में कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज जो है 1 यूनिट से लगातार बढ़ता जाता है ना। तो जो धनावेश की मात्रा है, जो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा है, वो टेट्राक्लोरो प्लेटिनम 2 प्लेटिनेट 2 आयन पे सबसे कम, जबकि क्लोरो टेट्रामीन क्लोरो ट्रायमीन प्लेटिनम 1 पे अधिकतम पाई जाती है। तो अगर इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में डिसोसिएट होने की प्रवृत्ति डिसोसिएटिव होती, मतलब मैकेनिज्म डिसोसिएटिव होता, तो जो टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट 2 आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, वो सबसे आसानी से वियोजित होता, डिसोसिएट होता, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पे सबसे ज़्यादा ऋणावेश पाए जाने के कारण प्लेटिनम और क्लोराइड आयन के मध्य जो है दुर्बलतम बंध एक्सपेक्टेड है। ठीक है। अब ऊपर से नीचे आने पे पॉजिटिव चार्ज है और फलस्वरूप जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उसमें लगातार वृद्धि होने के कारण डिसोसिएशन की प्रवृत्ति कम होती हुई जो है क्लोरो ट्राइअमीन प्लेटिनम 1 जो कि खुद एक पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए न्यूनतम हो जाती है। लेकिन ऊपर वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, फर्स्ट 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसमें जो सब्स्टिट्यूशन रेट है वो लगभग समान रहती है, जबकि जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें यह 2.5 गुना अधिक पाई जाती है। तो स्पष्टतः ये संकेत यहाँ पे मिल जाता है कि इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज़्म है वो डिसोसिएटिव नहीं होता है। ठीक है। तो जब हम डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म को प्रोत्साहित करने वाले दूसरे अन्य प्रकार के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी पे हम एक सीरीज़ पे हम जो है रिएक्शन पे विचार करते हैं, तो यहाँ पे इट इज़ एक्सपेक्टेड कि क्या होता है कि सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर जब लिगेंड का आकार में वृद्धि होती है ना, स्टेरिक इफेक्ट पड़ता जाता है, तो इंटरलिगेंड स्टेरिक रिपल्शन जो है, रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाते हैं, उससे प्रतिस्थापित होने वाला लिगेंड जो है वो अधिक आसानी से डिसोसिएट हो पाता है। ओके। तो इस तरह से स्टेरिक इफेक्ट को हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो हाउएवर स्टेरिक क्राउडिंग जो है जो एट द सेंटर यूजुअली इनहिबिट्स एसोसिएटिव रिएक्शन, ओके, एंड फैसिलिटेट्स द डिसोसिएटिव पाथवे, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो bulky groups they can block the approach of attacking nucleophile, and the reduction of coordination number in a dissociative reaction can relieve the overcrowding that you know. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये प्लेटिनम के इस कॉम्प्लेक्स का अध्ययन करें ना, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस को हम स्टडी करें, इन विच क्लोराइड इज सब्सटीट्यूटेड बाय वाटर एंड एल इज क्या है, कौन सा लिगेंड है, पिरिडिन, एंड इट्स मेटल डेरिवेटिव, मिथाइल डेरिवेटिव, जैसे कि 2 मिथाइल पिरिडीन एंड 2,6 डाइमिथाइल पिरिडीन। तो रिएक्शंस दे हैव बीन शोन हियर ऑन द स्क्रीन। मतलब कि जब इस प्लेटिनम के सिस कॉम्प्लेक्स को, जिसमें कि हमने क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट किया है जल के द्वारा, तो एल तो ये एक लिगेंड है जिसपे कि कोई भी जो है इसको एल्काइल ग्रुप का प्रतिस्थापन करके इसका आकार हम बढ़ा सकते हैं, स्टेरिक इफेक्ट बढ़ा सकते हैं। तो इस आरंभ में हम एल को पिरिडीन लेते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन एटम के निकट स्थित हाइड्रोजन एटम्स के मिथाइल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन करके हम 2 मिथाइल पिरिडीन दे सकते हैं, 2,6 डाइमिथाइल पिरिडीन लिगेंड प्राप्त किए जा सकते हैं। अब चूंकि ये लिगेंड क्लोराइड के निकट सिस पोजिशन में होते हैं, उसमें आकार बढ़ने के कारण जो क्या होता है कि प्लेटिनम और क्लोरीन बॉन्ड जो है वो उसमें डिसोसिएशन
एट ईज होना एक्सपेक्टेड है ना, आसानी से प्लेटिनम क्लोरीन बंध का जो वियोजन है वो हो जाता है। यानी कि अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म पाथवे अगर डिसोसिएटिव है तो अभिक्रिया की गति बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो है इन सब स्क्रीन पे दिखाए गए रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट ब्रैकेट में अलग से दिए हुए हैं, है ना। तो अपेक्षा के विपरीत यह देखा जा सकता है कि सारी इस अबव मेंशन रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि क्लोराइड लिगेंड के निकट स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाए ना, तो ऐसी स्थिति में भी रिएक्शन रेट जो है वो धीमी पड़ती जाती है। तो यह एक स्पष्ट संकेत दे रहा है कि इन कॉम्प्लेक्सेस में जो सब्स्टिट्यूशन है वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू नहीं होता है ना। इस प्रकार हम किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का जो है सब्स्टिट्यूशन उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं वो डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो नहीं करती हैं, राइट। रेट कांस्टेंट आपने यू हैव बीन given the rate constant here for all the reactions in the brackets. So these values of rate constants indicate that the reaction rate increases with increase in steric grounding around the central platinum metal ion due to increasing number of methyl group, right. तो इस तरह से जो है अगर in the 2,6-dimethyl pyridine complex of 2 methyl group adjacent to the nitrogen donor atom block the positions both above and below the plane which has been shown here in the figure and hence greatly decrease the rate. So this can be explained by assuming the dissociative mechanism for the substitution reaction only. ये आप स्क्रीन पे देखिए, ठीक है। तो in this way we have tried to explain. Now we go to another mechanism, that is associative mechanism. We know that 1p orbital which is perpendicular to the plane of molecule is left empty in a square planar complex. So here we might anticipate, as turn out to be true, that the complex जो है it makes use of this orbital in accepting the electron pair from the incoming ligand. So the addition of this ligand in the perpendicular plane is useful in minimizing the steric grounding. ये स्टेरिक क्राउडिंग को जो है यहाँ पे जो स्टेरिक इनरेंस है, स्टेरिक क्राउडिंग है, उसको यह मिनिमाइज कर देता है। Hence, in most of the cases, the substitution in square planar complexes takes place by associative mechanism. The two arrangements are possible for the intermediate complexes having coordination number 5. क्या देख तो formation of square pyramid structure requires no rearrangement of ligand, but in this case the steric repulsion among the ligand is greater than that for the trigonal bipyramidal structure. So the trigonal bipyramidal structure can be achieved with some rearrangement such that the entering, leaving and the trans groups they lie in the trigonal plane. Okay, so insight into the nature of the activated complex is obtained from the observation that the substitution of a square planar complex preserves the original geometry, right. That is, a cis complex gives a cis product and a trans complex gives a trans product. So this behavior can be explained by assuming the trigonal bipyramidal structure for the activated complex. So the steric course of the reaction for the cis and the trans platinum complex has been shown here on the screen. Okay. तो हमें पता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जब अणु के तल के लंबवत एक रिक्त एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है, तो जब ये कॉम्प्लेक्सेस जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आने वाले लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्राइंड करने के लिए इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल का उपयोग करते हैं। अब चूंकि ये लिगेंड अन्य लिगेंड्स के लंबवत होता है तो
इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स मतलब में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में जो मिनिमम इंटरलिगेंड प्रतिकर्षण पाया जाता है। अतः जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती हैं ना। अब 5 कोऑर्डिनेशन संख्या के कॉम्प्लेक्सेस के लिए 2 प्रकार की व्यवस्था पाई जाती हैं। एक तो होती है स्क्वायर पिरामिडल और एक है ट्राइगोनल डाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर के निर्माण में तो जो एंटरिंग लिगेंड है वो सीधे ही एपिकल पोजीशन को ग्रहण कर लेता है और जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है उसका आधार वर्गाकार ही रहता है ना, स्क्वायर ही रहता है स्क्वायर प्लेन। लेकिन इस वजह से क्या होता है, लिगेंड का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता और हेंस लिगेंड की इस रीअरेंजमेंट में ऊर्जा का कोई लॉस नहीं होता। लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में की तुलना में जो डोनर आइटम हैं वो ज़्यादा अधिक नज़दीक होने के कारण स्टेरिक रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होता है ना। तो इसीलिए जो ट्राइगोनल डाइपिरामिडल की संरचना में जो बेस जो है वो ट्राइगोनली होता है और उसके ऊपर और नीचे लंबवत 2 लिगेंड्स होते हैं। तो जो एटम्स का जो रीअरेंजमेंट हो रहा है उसमें जो ऊर्जा का जो लॉस है वो अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। लेकिन लिगेंड दूर दूर होने के कारण स्टेरिक रिपल्शन जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है ना। तो इस तरह से जो ट्राइगोनल आधार का निर्माण है वो एंटरिंग लिगेंड वाई प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूट होने वाले लिगेंड एक्स और स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में उसके प्रति ट्रांस लिगेंड के द्वारा होता है ना। तो यही बात तो हमने आपको बताई है अभी कि इस तरह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो सब्स्टिट्यूशन के फलस्वरूप जो प्राप्त जो उत्पाद होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसकी ज्योमेट्री वो पेरेंट कॉम्प्लेक्स जैसी होती है। यानी कि सिस कॉम्प्लेक्स से सिस प्रोडक्ट मिलेगा और ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा है ना। तो और इससे जो है इंटरमीडिएट की संरचना के बारे में भी अनुमान लग जाता है। ओके, तो जैसा कि मैंने अभी आई जस्ट टोल्ड यू दैट cis complex is giving cis product and trans complex is giving trans product. So by assuming this behavior can be explained by assuming trigonal bipyramidal structure for the activated complex, intermediate activated complexes, and the steric course has been shown here on the screen also. So in the next lecture we will be continuing this topic. See you there. Bye.